This video is about Red Trap Part 4 in इसका हिंदी वर्जन in continuation of Red Trap Part 3 वीडियो और ये हिंदी वर्जन है. Of course it is you से लेके seem to be quite frightened तक. It is you, Niels or Olof, he said. How do you look? Come here to talk, but only to warm himself and sleep. The man with Red Trap had never seen the Iron Master at Ramjur and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of corners. Therefore, he did not want to undeceive him at all at once. लेकिन बेशक वे आप ही हैं, नील्स ओलोफ, उसने कहा. आप कैसे दिखते हैं? वहाँ बात करने के लिए आया था, लेकिन खुद को गर्म करने और सोने के लिए. चूहे के जाल वाले आदमी ने पहले कभी रामसोज के आयरन मास्टर को नहीं देखा था. वह ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई. अगर उस अच्छे सज्जन को लगा कि वह उसका पुराना परिचित है, तो शायद वह उसे कुछ कॉर्नर दे सकता है. इसलिए वह उसे एक बार में धोखा नहीं देना चाहता था. गॉड नोज, यस गॉड नोज, थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, he said. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. That was the mistake. If only I had still been in service at the time, I never would have happened. Well, now of course you will come home with me. हाँ, भगवान जानता है मेरे साथ चीज़ें खराब हो गई, उन्होंने कहा. आपको रेजिमेंट से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, आयरन मास्टर ने कहा. यही गलती थी. अगर मैं उस समय भी सेवा में होता तो ऐसा कभी नहीं होता. खैर, अब बेशक आप मेरे साथ घर आएंगे. टू गो अलोंग अप टू मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. जागीर के घर तक जाना और मालिक द्वारा एक पुराने रेजिमेंटल साथी की तरह स्वागत किया जाना, हालांकि वह ये बात उस आवारा को पसंद नहीं आई. नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, उसने कहा. काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था. He thought of the 30 corner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. उसने 30 कॉर्नर के बारे में सोचा. जागीर घर में जाना खुद को शेर की मान में फेंकने जैसा होगा. वह बस यहाँ फोर्स में सोने का मौका चाहता था और फिर जितना हो सके चुपचाप भाग जाना चाहता था. आयरन मास्टर ने मान लिया कि वह अपने दयनीय कपड़ों के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहा था. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothes. Please don't think that I have such a fine house that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead. As you may already have heard, my boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster.
आर्यन मास्टर ने मान लिया और वह अपने दयनीय कपड़ों के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहा है। कृपया ये मत सोचिए, मेरे पास इतना बढ़िया घर है, आप वहाँ खुद को नहीं दिखा सकते। उन्होंने कहा, एलिजाबेथ मर चुकी है। जैसा कि आपने पहले ही सुना होगा, मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पर मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई नहीं है। हम बस यही कह रहे थे कि ये बहुत बुरा है कि क्रिसमस के लिए हमारे पास कोई साथी नहीं था। अब मेरे साथ आइए, क्रिसमस के खाने को थोड़ा तेज़ी से ख़त्म करने में हमारी मदद कीजिए। But strangers said no and no and no, and the Iron Master saw that he must give in. लेकिन अजनबी ने कहा नहीं और नहीं और फिर नहीं, और लो स्वामी ने देखा कि उसे हार माननी ही होगी। But strangers said no and no and no, and the Iron Master saw that he must give in. लेकिन अजनबी ने कहा नहीं और नहीं और फिर नहीं, और लो स्वामी ने देखा कि उसे हार माननी ही होगी। Looks as though Captain von Stahel preferred to stay with you tonight, Sternstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel, but he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well. ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाहल आज रात आपके साथ रहना पसंद करेंगे, स्टर्नस्ट्रॉम, उन्होंने मास्टर लोहार से कहा और अपनी एड़ी घुमा ली, लेकिन वे खुद को हंसाते हुए चले गए। लोहार जो उन्हें जानता था और अच्छी तरह से समझ गया। नॉट सेट हिज लास्ट वर्ड, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज wheel outside the forge, and new guest came in, but this time it was not Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than himself. कि उसने अपना आखिरी शब्द नहीं कहा था। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बीता था कि उन्हें गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। एक नया मेहमान आया, लेकिन इस बार वह लोहार नहीं था। उसने अपनी बेटी को भेजा था, जाहिर तौर पर उम्मीद करते हुए कि उसके पास खुद से ज़्यादा समझाने की शक्ति हो। फॉलोड बाय ए वैले कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, बट सीम मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई. इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट as it had been earlier in the morning. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. आई, उसके पीछे एक नौकर आया जिसने अपनी बाह पर एक बड़ा फर कोट पहना हुआ था। वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन विनम्र और काफ़ी शर्मीली लग रही थी। भट्टी में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम को पहले था। मास्टर लोहार और उसका प्रशिक्षु अभी भी अपने बेंच पर बैठे थे और भट्टी में लोहा और कोयला अभी भी चमक रहा था। अजनबी ने खुद को फर्श पर फैला लिया था और अपने सिर के नीचे पिग आयरन का एक टुकड़ा और अपनी टोपी को अपनी आंखों पर खींचकर लेटा हुआ था। जैसे ही छोटी लड़की ने उसे देखा, वे ऊपर गई और उसकी टोपी उठा ली। वह आदमी स्पष्ट रूप से एक आँख खुली रखकर सोने का आदी था। वह अचानक उछल पड़ा और काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। आई, उसके पीछे एक नौकर आया जिसने अपनी बाह पर एक बड़ा फर कोट पहना हुआ था। वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी,
लेकिन विनम्र और काफ़ी शर्मीली लग रही थी। भट्टी में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम को पहले था। मास्टर लोहार और उसका प्रशिक्षु अभी भी अपने बेंच पर बैठे थे और भट्टी में लोहा और कोयला अभी भी चमक रहा था। अजनबी ने खुद को फर्श पर फैला लिया था और अपने सिर के नीचे पिग आयरन का एक टुकड़ा और अपनी टोपी को अपनी आंखों पर खींचकर लेटा हुआ था। जैसे ही छोटी लड़की ने उसे देखा, वे ऊपर गई और उसकी टोपी उठा ली। वह आदमी स्पष्ट रूप से एक आंख खुली रखकर सोने का आदी था। वह अचानक उछल पड़ा और काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। Of the chapter Red Trap. The first question is, what made the peddler accept Edla Wilmonson's invitation? By his frightened look, Edla guessed that the peddler had stolen something or escaped prison, so she hinted an assurance that he would be free to leave whenever he wanted. Reassured, he accepted the invitation. मैंने एडला विल्सन का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया? उसके डरे हुए चेहरे से एडला ने अंदाज़ा लगाया कि फेरी वाले ने या तो कुछ चुराया है या जेल से भाग गया है। इसलिए उसने उसे आश्वासन दिया कि वह जब चाहे तब जाने के लिए स्वतंत्र होगा। आश्वस्त होकर उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। Did Edla have about the peddler? When Edla went to the iron mill to fetch the peddler, she noticed he was frightened. She had doubts that the peddler had stolen something or had escaped prison. His appearance and the behavior also left her in doubt whether he was an educated man as claimed by her father. के बारे में क्या संदेह था? जब एडला फेरी वाले को लाने के लिए लोहे की चक्की में गई तो उसने देखा कि वह डरा हुआ था। उसे संदेह था कि फेरी वाले ने कुछ चुराया है या जेल से भाग गया है। उसकी शक्ल और व्यवहार ने भी उसे संदेह में डाल दिया कि क्या वह वास्तव में एक शिक्षित व्यक्ति था जैसा कि उसके पिता ने दावा किया था। Iron Master realized his mistake. Answer: The Iron Master realized his mistake the next day when the peddler turned up at breakfast. The valet has bathed the peddler, cut his hair, shaved him, and given him clothes. The Iron Man realized that he had been deceived in recognizing the person because of the reflection of furnace the previous night. मालिक को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? लोहे के मालिक को अपनी गलती का एहसास अगले दिन हुआ जब फेरी वाला नाश्ते के समय आया। नौकर ने फेरी वाले को नहलाया और उसके बाल काटे, उसकी दाढ़ी बनाई और उसे कपड़े दिए। लोहे के मालिक को एहसास हुआ कि पिछली रात भट्टी के प्रतिबिंब के कारण वह व्यक्ति को पहचानने में धोखा खा गया था। से in his defense, when it was clear that he was not the person the Iron Master had thought he was. To defend himself, the peddler argued that he had never said he was a captain or the old comrade of the Iron Master. He had repeatedly declined the invitation to spend Christmas at Manor. कि वह व्यक्ति नहीं था जिसे आयरन मास्टर ने सोचा था। तो फेरी वाले ने अपने बचाव में क्या कहा? अपने बचाव में फेरी वाले ने तर्क दिया कि उसने कभी नहीं कहा था कि वह आयरन मास्टर का कैप्टन या पुराना साथी है। वास्तव में उसने बार बार मैनोर में क्रिसमस बिताने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। He entertained
the peddler even after she knew the truth about him. Adela had a kind and sympathetic heart that was pained by the plight of the poor peddler. She requested her father to allow him to spend one day with them in peace as a respite from the struggle he had to endure around the year. Her principles did not allow her to throw this man out of her house on Christmas Eve, especially when they had already promised him Christmas cheer. Moreover, she had been in high spirits that morning, thinking of how she could help the tramp. Therefore, even after knowing the truth, Adela wanted to entertain the peddler. के बाद भी एडला ने फेरी वाले का मनोरंजन क्यों किया? एडला के पास एक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हृदय था जो गरीब फेरी वाले की दुर्दशा से दुखी था। उसने अपने पिता से अनुरोध किया कि वे उसे साल भर संघर्ष करने से राहत के रूप में एक दिन शांति से उनके साथ बिताने दें। उसके सिद्धांतों ने उसे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी, खासकर जब उन्होंने पहले से ही उसे क्रिसमस की जयकार का वादा किया था। इसके अलावा वह उस सुबह बहुत उत्साहित थी, सोच रही थी कि वह किस तरह से आवारा की मदद कर सकती है। इसलिए सच्चाई जानने के बाद भी एडला फेरी वाले का मनोरंजन करना चाहता। हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय पेडलर। Adela showed great trust in him by letting him stay at their manor on the Christmas Eve, but the news about the robbery had left her dejected. So she was overjoyed when she reached home to find the package and the letter left by the peddler. This gesture of appreciation from the peddler made her happy. वाले द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर खुश क्यों हुई? एडला ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसे अपने घर में रहने देकर उस पर बहुत भरोसा दिखाया, लेकिन डकैती की खबर ने उसे उदास कर दिया था। इसलिए जब वह घर पहुंची तो उसे फेरी वाले द्वारा छोड़ा गया पैकेज और पत्र मिला, जिससे वह बहुत खुश हुई। फेरी वाले की ओर से प्रशंसा के इस भाव ने उसे खुश कर दिया। Sign himself as Captain Von Stahel. Throughout his life, the peddler had never known respect. He was always treated coldly by the world. For the first time in his life, he was honored and respected as if he were a captain. Even after the truth was exposed, the daughter continued to treat him similarly. The way he was treated encouraged him to behave in a like manner. He signed the letter as Captain Von Stahel so as to underline the impact of Adela's goodness on him. स्टाहल के रूप में खुद पर हस्ताक्षर क्यों किए? अपने जीवन में फेरी वाले ने कभी सम्मान नहीं जाना था। दुनिया ने हमेशा उसके साथ ठंडा व्यवहार किया। अपने जीवन में पहली बार उसने सम्मान और आदर मिला कि वह कैप्टन हो। सच्चाई उजागर होने के बाद भी बेटी ने उसके साथ इसी तरह का व्यवहार जारी रखा। जिस तरह वह उसके साथ व्यवहार किया गया, उसने उसे उसी तरह से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कैप्टन वॉन स्टाहल के रूप में पत्र पर हस्ताक्षर किए ताकि उस पर एडला की अच्छाई के प्रभाव को रेखांकित किया जा सके। Adler interpret the act of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter. The different ways in which the peddler repaid the three people correspond to the way he interpreted the kindness of the three people. The peddler realized that for the crofter it was his craving for company that led him to offer his hospitality. The iron master's hospitality apparently
is limited to his acquaintances. It was only the daughter who genuinely offered warmth and goodness to the peddler. He was touched by Adela's kindness, and it made him want to act differently. He repaid her good treatment with a gesture of true gratitude. काश्तकर लोहार और उसकी बेटी द्वारा दिखाए गए दयालुता और आतिथ्य के कृत्यों को किस तरह से बदला दिया, वह तीनों लोगों की दयालुता को व्याख्या करने के तरीके से मेल खाता है। फेरी वाले ने महसूस किया कि काश्तकार के लिए यह उसकी कंपनी की लालसा थी जिसने उसे अपना आतिथ्य प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। लोहार का आतिथ्य जाहिर तौर पर उसके परिचितों तक सीमित था। वह केवल बेटी ही थी जिसने वास्तव में फेरी वाले को गर्मजोशी और अच्छाई की पेशकश की। वह एडला की दयालुता से प्रभावित हुआ और उसने उसे अलग तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। फेरी वाले ने तीनों लोगों का सच्चा आभार व्यक्त करके बदला चुकाया। Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाया। वह उसका विरोध करने के लिए खुद को नहीं ला सका। ये सब एक गलती थी बेशक, उसने आगे कहा, लेकिन वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमें इस इंसान को भगाना चाहिए जिसे हमने यहाँ आने के लिए कहा है, जिसे हमने क्रिसमस की खुशियाँ देने का वादा किया है। Preach worse than a parson, said Iron Master. I only hope you won't have to regret this. The young girl took the stranger by hand and led him up to the table. Now sit down and eat. तुम पादरी से भी बदतर उपदेश देते हो, लोहार ने कहा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होगा। युवा लड़की ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे मेज़ तक ले गई। अब बैठो और खाओ। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man with red trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food time after time. और खाओ, उसने कहा, क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिता ने हार मान ली है। चूहेदानी वाला आदमी एक शब्द भी नहीं बोला। वह बस बैठ गया और खुद ही खाना खाने लगा, बार बार। The young girl who had interceded for him, why had she done this? What could be the crazy idea? After that, Christmas Eve at Ramjo's passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. उस युवा लड़की की तरफ देखा जिसने उसके लिए हस्तक्षेप किया था कि उसने ऐसा क्यों किया। ये पागलपन भरा विचार क्या हो सकता है। इसके बाद रामजोस में क्रिसमस की पूर्व संध्या हमेशा की तरह ही बीत गई। अजनबी ने कोई परेशानी नहीं पैदा की क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ नहीं किया। पूरे
वह अतिथि कक्षों में से एक में सोफे पर लेटा रहा और एक ही बार में सो गया। At noon they woke him up so that he could have his share of good Christmas fare, but after that he slept again. It seemed though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ram's Jew. उसे जगाया ताकि वह क्रिसमस का बढ़िया खाना खा सके, लेकिन उसके बाद वह फिर सो गया। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वह राम्स जो में इतनी शांति और सुरक्षा से नहीं सो पाया था। Christmas tree was lighted. They woke him up again. He stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that he disappeared again. 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. क्रिसमस ट्री जलाया गया तो उन्होंने उसे फिर से जगाया और वह कुछ देर तक ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, पलके झपकाता रहा जैसे मोमबत्ती की रोशनी उसे तकलीफ़ दे रही हो। लेकिन इसके बाद वह फिर गायब हो गया। 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया। फिर उसे डाइनिंग रूम में जाकर क्रिसमस फिश और दलिया खाना पड़ा। Got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. जैसे ही वे मेज से उठे, वे वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के पास गया और धन्यवाद तथा शुभ रात्रि कहा। लेकिन जब वह उस युवा लड़की के पास पहुँचा तो उसने उसे ये समझाया कि उसके पिता का इरादा था कि उसने जो सूट पहना था वह क्रिसमस का उपहार था। उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं थी, और यदि वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या ऐसी जगह पर बिताना चाहता था जहां वह शांति से आराम कर सके और ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बुराई उस पर नहीं आएगी, तो उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। With the rat trap did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वह बस असीम आश्चर्य से उस युवती को देखता रहा। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस की सेवा के लिए जल्दी उठ गए। उनका मेहमान अभी भी सो रहा था। उन्होंने उसे परेशान नहीं किया।